میری طرف سے تعبیر ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کو سیر کرواؤں گا جنوبی ایشیا میں موجود صرف اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والے ملک اور جنوبی ایشیا میں ایٹمی طاقت میں دوسرے اور اسلامی ممالک میں واحد ایٹمی اسلامی ملک ہونے کا اعزاز رکھنے والے پیارے سے ملک پاکستان کی۔ میں پاکستان کے بارے میں آپ کو کچھ ایسے دلچسپ حقائق سے آگاہ کروں گا جن سے یقیناً بہت سے پاکستانی خود بھی لا علم ہوں گے۔ لیکن دوستو، پاکستان کی سیر پر جانے سے پہلے میں اپنے ان تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل تعبیر ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے تعبیر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ دوستو، پاکستان روئے زمین پر ایک ایسا ملک ہے جس میں پہاڑ، دریا، جھیلیں، تپتے صحرا اور سرسبز میدانی علاقے، آسمان کی بلندیوں کو چھوتے پہاڑ، زمین کے سینے میں اترتے سمندروں کی سرحدیں، سرد اور گرم ہواؤں کا ملن، بارشوں اور خشکی کا مسکن، پت جھڑ کا موسم اور ہزاروں رنگوں کے پھول کھلاتی سرزمین، سونے کے پہاڑ، تیل، کوئلے کے ذخائر اور نہ جانے خداوند کریم کی کتنی ہی عنایات کا حامل یہ خطہ زمین ہے۔ دوستو، پاکستان 14 اگست 1947 کو ہندوستان سے علیحدگی کی صورت میں معرض وجود میں آیا۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو صرف اسلام کے نام پر آزاد ہوا۔ اس کا مکمل سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 21,27,42,631 افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے اعتبار سے یہ دنیا میں 5واں بڑا ملک شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,095 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 36ویں نمبر پر آتا ہے۔ سرحدی اعتبار سے یہ 1046 کلومیٹر ساحلی پٹی کا حامل ملک ہے۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت، شمال مشرق میں چین، مغرب میں افغانستان، جنوب مغرب میں ایران واقع ہے اور جنوب میں پاکستان کی سمندری حدود عمان کی سمندری حدود سے جا ملتی ہے۔ دوستو، موجودہ پاکستان ان قدیم علاقوں میں شامل ہے جن پر مختلف تہذیبوں اور بہت سے غیر ملکی جنگجوؤں کا اثر و رسوخ قائم رہا ہے اور انہوں نے اس خطے پر اپنی سلطنت قائم کیے رکھی۔ ان میں یونانی، ایرانی، عرب، ہندو، سکھ، منگول اور ترک حملہ آوروں نے اپنی حکومت قائم کی۔ ان کے علاوہ موریہ، مغل سلطنت، مغلیہ سلطنت، دورانی سلطنت، سکھ سلطنت اور برطانوی راج کا اہم حصہ رہا ہے۔ پاکستان نے 1947 میں آزادی حاصل کرنے کے باوجود 9 سال بعد 1956 میں پہلا آئین متعارف کروایا۔ 1965 میں بھارت کی طرف سے پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی جس میں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن صرف 6 سال بعد نسلی اور اخلاقی بنیاد پر اٹھنے والی نفرت کی ایک لہر نے پھر دونوں ملکوں کو زہر اگلنے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کیا، جس کے نتیجے میں 1971 میں ہونے والی جنگ میں پاکستان کا ایک حصہ جدا ہو گیا جو آج بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کی اس علیحدگی کے دوران تقریباً 5 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے۔ پاکستان کا نام تحریک پاکستان کے ایک کارکن چودھری رحمت علی نے 1933 میں تجویز کیا تھا۔ پاکستان کا پرچم 2 رنگوں سبز اور سفید رنگ پر مشتمل ہے اور سبز حصے پر چاند ستارہ بھی بنا ہوا ہے۔ پاکستانی پرچم کو 11 اگست 1947 کو ملک کی آزادی سے 3 دن پہلے ایک میٹنگ میں اپنایا گیا جسے آزادی کے بعد بھی برقرار رکھا گیا۔ پاکستانی پرچم کو ہر روز ایک عظیم جوش و جذبے کے ساتھ واہگہ بارڈر پر لہرایا جاتا ہے اور سلامی پیش کی جاتی ہے۔ دوستو، آبادی کے لحاظ سے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ دوستو، پاکستان کے موجودہ علاقے قدیم ترین انسانی تہذیبوں کا مرکز رہے ہیں جن کے واضح ثبوت ان تہذیبوں کی بربادی کے منہ بولتے ثبوت ہیں، جن میں موہنجو داڑو، ہڑپا، نیوی تیش اور مہر راگ کے آثار شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان قدیم تہذیبوں کے دوران حکومت ملتان شہر ہندوؤں کا ایک مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ ٹیکسلا شہر تقریباً 1000 قبل مسیح سے آباد ہے جو ان قدیم تہذیبوں میں شمار ہوتا ہے۔ فارسی تہذیب کے حکمرانوں نے اس علاقے پر 519 عیسوی کے دوران حکومت قائم کی تھی۔ ٹیکسلا کی یونیورسٹی دنیا کی ابتدائی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔
जिसकी बुनियाद 6वीं सदी में सदीकी दौर में रखी गई। सिंध पर राजा खानदान ने 499 से 632 ईस्वी में धर्मपला और दैपला के तहत मौजूदा बांग्लादेश समेत जनूबी एशिया के अक्सर इलाकों में अपनी हुकूमत कायम किए रखी। 711 में मोहम्मद बिन कासम ने सिंध को फतह किया, जिसके बाद बरसगीर में इस्लाम की इब्तदा शुरू हुई। इसके बाद यहाँ पर महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने एक तवील अरसे तक हुकूमत की। दोस्तों 1930 में बरसगीर में मुसलमानों की सियासी जमात ने बेहद मकबूलियत हासिल की और 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने 90% वोट हासिल करके मुसलमानों की आज़ादी की तहरीक पर कामयाबी की मोहर लगा दी। जून 1947 को भारत के जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के अबू अलामल आज़ाद, आल भारत मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्नाह और सिखों की तरफ से तारा सिंह ने बरसगीर के माउंट बैटन और वैसराय के सामने आज़ादी की मुंतकली की तजवीज़ करदा शराइत पर इत्तेफाक किया और यूं इस तजवीज़ पर 1947 को अमल दरामद किया गया। इस तकसीम के नतीजे में होने वाले फसादात में तकरीबन 20 लाख अफराद मौत की वादी में चले गए। दोस्तों कहा जाता है कि तकसीम पाको हिंद के दौरान तकरीबन 6.5 लाख मुसलमानों को भारत से मगरबी पाकिस्तान और 4 लाख हिंदुओं को मगरबी पाकिस्तान से भारत मुंतकिल किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इंसानी तारीख की यह सबसे बड़ी मुंतकिली थी। दोस्तों 1947 में आज़ादी के बाद मुल्क के पहले सदर कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुंतखब हुए, लेकिन 11 सितंबर 1948 को उनकी वफात के बाद मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी लियाकत अली खान मुल्क के पहले वजीर आज़म मुंतखब किए गए। 1949 में जमात इस्लामी के मौलाना मदूदी और मौलाना शब्बीर उस्मानी ने मुकम्मल तौर पर मुल्क का आइन शरई कवानीन के तहत बनाने का मुतालबा किया, जिसके नतीजे में 1956, 1962 और 1973 के कवानीन को मुकम्मल तौर पर इस्लाम और शरीयत की बुनियाद पर तरतीब दिया गया। दोस्तों मुल्क में सियासी बहरान की वजह से 1958 में पहला मार्शल लॉ नाफजुल अमल किया गया और मुल्क की बागडोर जनरल अयूब के हाथ में आ गई। पाकिस्तान के तमाम बड़े डैम जनरल अयूब खान के दौरे आमरीत में बनाए गए। कहा जाता है कि अयूब खान के दौर में मुल्क में तरक्की तो हुई, लेकिन मशरकी पाकिस्तान दूर होता गया। 1963 में दूसरा आइन नाफज होने के बावजूद मुल्क के हालात बिगड़ते गए। अवामी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र जनरल अयूब खान ने हुकूमत फौजी जनरल यहिया खान के हवाले कर दी। 1971 के आम इंतखाबात में यहिया खान को वाज़े बरतरी हासिल हुई, लेकिन यहिया खान ने मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन को तरजीह दी, जिसका भारत ने भरपूर फायदा उठाते हुए मशरकी पाकिस्तान के अलहदगी पसंदों की भरपूर मदद और हिमायत की, जिसके नतीजे में दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान की जगह एक नया मुल्क बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आया। 1972 से 1977 तक मुल्क में PPP की हुकूमत कायम रही, जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो पहले सदर और बाद में मुल्क के वजीर आजम के ओहदे पर रहे, लेकिन मुल्क में हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान कुशीदगी की सूरत में 1977 में दोबारा मार्शल लॉ नाफिज किया गया। 1977 से 1988 तक मार्शल लॉ का दौर था। इस दौर में जनरल ज़ियाउल हक मुल्क के हुक्मरान थे। 1985 में गैर जमाती इंतखाबात हुए, जिसमें जुनेजो की हुकूमत बनी, जिसे 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने बरतरफ कर दिया। 1988 में जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा बहावलपुर से आते हुए हादसे का शिकार हो गया, जिसमें ज़ियाउल हक समेत आला अक्सरी क़यादत भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। 1988 में ज़ियाउल हक के बाद साबिक सदर जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, लेकिन कुछ अरसा बाद ही मुल्क के सदर गुलाम इसहाक खान ने हुकूमत को बरतरफ कर दिया और 1990 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत कायम हुई, जो सिर्फ 3 साल बाद 1993 में ख़त्म हो गई। इसके बाद पाकिस्तान के नए सदर फारूक लिगारी बने और 1993 के इंतखाबात में फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हलीफ जमातें इक़्तिदार में आईं, लेकिन 1997 में सदर फारूक लिगारी ने यह हुकूमत बरतरफ करके दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया और यूं 1997 में नवाज शरीफ दोबारा मुल्क के वजीर आजम बन गए। मगर अफसोस के मुस्लिम लीग नून के इस दौरे हुकूमत में फौज और हुकूमत के दरमियान कुशीदगी बढ़ गई, जिसके नतीजे में 1999 में फौजी जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। 2001 के इंतखाबात में ज़फ़रुल्लाह जमाली मुल्क के वजीर आजम मुंतखब हुए। 2004 में कुछ अरसे के लिए चौधरी शुजात ने वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारियां भी संभाली, लेकिन शौकत अजीज के कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब होने के बाद वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया।
वजीर आजम शौकत अजीज 15 नवंबर 2007 को कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर मुस्तफी हो गए और 16 नवंबर 2007 को मियां मोहम्मद सोमरो ने अबूरी वजीर आजम का हलफ उठाया। 2007 में बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद 2008 को एक बार फिर PPP बरसरे इक्तदार आई और यूसुफ रिजा गिलानी मुल्क के नए वजीर आजम मुंतखब हुए, जो 22 जून 2012 को नाअहली की वजह से मुस्तफी हो गए और राजा परवेज अशरफ नए वजीर आजम मुंतखब हुए। मई 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात बनकर उभरी और यूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम मुंतखब हुए। लेकिन बदकिस्मती से 28 जुलाई 2017 को अदालत उज़्मा ने पनामा लीक्स की वजह से नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार देते हुए बरतरफ कर दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी मुल्क के वजीर आजम बन गए। 2018 के आम इंतखाबात में मुल्क की एक सरगर्म पार्टी तब्दीली और नए पाकिस्तान का मोटो लेकर सामने आई और भारी अक्सरियत हासिल करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुल्क के नए वजीर आजम मुंतखब हुए। दोस्तों, जुग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान जनूबी एशिया के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़ है। पाकिस्तान के जंगलात में मुख्तलिफ इक़साम के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं, बल्कि कुछ जानवर और परिंदे ऐसे भी हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के जंगलों में ही पाए जाते हैं। पाकिस्तान 1046 किलोमीटर समंदरी और 6774 किलोमीटर ज़मीनी सरहद का हामिल मुल्क है। इसकी ज़मीनी सरहद अफगानिस्तान के साथ 2430 किलोमीटर, चीन के साथ 523 किलोमीटर, भारत के साथ 2912 किलोमीटर और ईरान के साथ 909 किलोमीटर की सरहद मिलती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरिया सिंध है, जो पाकिस्तान के शुमाल से शुरू होकर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सूबा सिंध से गुजरकर समंदर में गिरता है। सूबा सिंध के वस्ती सूबा पंजाब के शुमाली और वस्ती इलाके मैदानी हैं। सूबा सिंध के मशरकी और सूबा पंजाब के जनूबी इलाके सहराई हैं और बलूचिस्तान में ज्यादातर पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात में दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला वाक़ है, जिनमें 26,660 फुट तक बुलंदो बाला चोटियां शामिल हैं। मौसमी लिहाज से पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें दिसंबर से फरवरी तक मौसम ठंडा, मार्च से मई तक गर्म मौसम रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 2 मौसम खिज़ां और बहार हैं, जिनमें मानसून की बारिशें भी काबिल जिक्र हैं। पाकिस्तान के जंगलात में सेप्रोस, पाइन और डोडार के दरख्त पाए जाते हैं, जबकि जनूबी बलूचिस्तान और सिंध में बेशुमार नारियल के जंगलात भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान के जंगलात में तकरीबन 668 अक़साम के परिंदे पाए जाते हैं, जिनमें बुश, गलियोन, मीना, हाक्स और अकाब काबिल जिक्र हैं। इनके अलावा सियारे, खरगोश, भारतीय पंगोलन, जंगली बिल्ली, सहराई बिल्ली, मार्को पोलो भेड़िया, आइबेक्स बेज, एशियाई स्याह रीछ और नायाब नस्ल के बर्फानी चीते भी शामिल हैं। पाकिस्तानी दरियाओं में 198 मछली की मुख्तलिफ अक़साम और 5000 के करीब कीड़ों की मुख्तलिफ नस्लें भी रिकॉर्ड की गई हैं। दोस्तों, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर इंडोनेशिया आता है। पाकिस्तान को एटमी ताकत होने की वजह से आलम इस्लाम में एक अलग मकाम हासिल है। पाकिस्तान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी रखता है, खासकर एटमी हथियारों का मामला हो या असले की खरीदो फरोख्त का। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले चीन के साथ रस्मी और सफारती ताल्लुकात कायम किए। चीन ने ग्वादर की बंदरगाह में सरमायाकारी करके एक लाजवाल दोस्ती की मिसाल कायम की। पाकिस्तान के मुस्लिम ममालिक के साथ लाजवाल ताल्लुकात कायम हैं। खास तौर पर इंडोनेशिया की आज़ादी तहरीकों में शमूलियत से अलजज़ैर, ट्यूनस, मराकश और एरिटेरिया के साथ करीबी ताल्लुकात कायम हुए। पाकिस्तान इस्लामी तावन तंजीम OIC का रुकन भी है। पाकिस्तान को 4 वफाकी सूबों में तकसीम किया गया है, जिनमें सूबा पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा जिसका पुराना नाम सूबा सरहद था, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम कबायली इलाका जात हैं। 2009 में कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया गया, जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान को नीम सूबे का दर्जा दिया गया। 200 आज़ाद कश्मीर के अलावा मुतनाज़ा कश्मीरी इलाके पर तकरीबन 45% हिस्से पर भारत का कंट्रोल है, जबकि भारत मुकम्मल जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत पर कंट्रोल का दावा करता है। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई करारदाद की रूह से मुस्लिम अक्सरियत वाले कश्मीरी इलाके हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करते हुए
किसी भी मुल्क से इलाहाक कर सकते हैं, लेकिन अफसोस कि ऐसा आज तक नहीं हो सका। दोस्तों, पाकिस्तान में कानून नाफज करने वाले कई वफाकी और सूबाई एजेंसियां मौजूद हैं, जिनमें वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, मोटरवे गश्त और नेशनल गार्ड शुमाली इलाका जात के लिए, रेंजर पंजाब और सिंध के लिए, जबकि फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए नामजद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का एक खुफिया तहकीकाती इदारा ISI है। 2011 में अमेरिका की तरफ से शाये करदा एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तानी ISI दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों में पहले नंबर पर है। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन इलाकों में शुमार होता है। GDP के लिहाज से चीन और मगरबी यूरोप के मुमालिक की तरह पाकिस्तान भी एक तरक्की पजीर मुल्क समझा जाता है। बैरूनी कुशीदगी और भारत के साथ मुआशी ताल्लुकात ना होने की वजह से मुल्की मुआशियत पर काफ़ी बुरा असर पड़ा, लेकिन गुज़िश्ता 2 बरसों से पाकिस्तान तरक्की के लिहाज से दुनिया में बेहतरीन मुल्क समझा जाता है, जिसकी वजह से मुल्क में गुर्बत की शरह में 10% कमी वाक़ हुई और मुल्की मुआशियत में 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान को दुनिया की 18वीं बड़ी मुआशियत होने का एजाज भी हासिल होगा। पाकिस्तान के दरामदाती और बरामदाती ताल्लुकात में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, बरतानिया, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे मुमालिक शामिल हैं। पाकिस्तान की कुल GDP 1.06 ट्रिलियन है और GDP के लिहाज से दुनिया में 25वें नंबर पर शुमार होता है। पाकिस्तानी करेंसी को पाकिस्तानी रुपया कहा जाता है। पाकिस्तानी मईशत बुनियादी तौर पर ज़राअत से वाबस्ता है, जबकि 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी GDP में ज़राअत का सिर्फ 20.9% हिस्सा ही शुमार किया गया है। इंडस्ट्री पाकिस्तानी मईशत का तीसरा बड़ा शोबा समझा जाता है, जिसमें सीमेंट की सनत काबिल ज़िक्र है। 2012 और 2013 में सीमेंट की सनत को मुल्की मईशत में सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श शोबा शुमार किया गया। टेक्सटाइल के शोबे में पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा बरामदाती मुल्क समझा जाता है। पाकिस्तान के 15 मिलियन अफराद का रोजगार टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ता है। पाकिस्तान का ये भी एक एजाज है कि दुनिया में चीन सिर्फ पाकिस्तान से ही कपास और सूत की खरीदारी करता है। पाकिस्तान की मईशत में मुलाजमत का शोबा अपना एक अलग मकाम रखता है। इसी वजह से मुल्क की GDP में सर्विस के शोबे की शरह खिदमत सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में तकरीबन 35 मिलियन अफराद इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और ये शरह दुनिया में तरक्की याफ्ता मुमालिक में शुमार होती है। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विसेज की ये तरक्की चीन से भी ज़्यादा बेहतर और मुस्तहकम शुमार की गई है। दोस्तों, पाकिस्तान सियाहत के हवाले से दुनिया में एक अलग और मुनफरद मकाम का हामिल मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान में पहाड़ी इलाकों के तफरीही मकामात के अलावा झीलें, कई 100 साल पुराने किले, कदीम तरीन फ़न तामीर के बने छोटे बड़े घर और लाहौर की बादशाही मस्जिद और किला जैसी लाजवाब जगह सियाहों की दिलचस्पी का बायस बनती हैं। इसके अलावा शालामार बाग, जहांगीर का मकबरा और झील सैफुल मलूक के दिल में उतर जाने वाले मनाजर नाकाबिले फरामोश हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में हर साल 5 लाख के करीब सियाह सैर तफरीह की गरज से आते हैं। इन सियाहों में एशिया, अमेरिका और यूरोप से ताल्लुक रखने वाले सियाह भी शामिल होते हैं। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के मुकाबले में काफ़ी हद तक बेहतर है, जबकि रेलवे का निज़ाम भारत के मुकाबले में बहुत पीछे है। पाकिस्तान में हाईवेज की कुल लंबाई 2,63,942 किलोमीटर है। ये सड़कें 92% मुसाफिरों के आने जाने और 96% तक अंदरूने मुल्क सामान की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पाकिस्तान में कुल 139 एयरपोर्ट हैं, जिनमें फौजी एयरपोर्ट भी शामिल हैं। पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर, बेनज़ीर एयरपोर्ट इस्लामाबाद, फैसलाबाद एयरपोर्ट, मुल्तान एयरपोर्ट, रहीम यार खान एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट और DG खान एयरपोर्ट काबिल ज़िक्र हैं। पाकिस्तानी एयरलाइन PIA के अलावा मुल्क में निजी एयरलाइन एयर बिलियो और शाहीन एयरलाइन अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तानी बंदरगाहों में ग्वादर पोर्ट और गडानी पोर्ट दूसरे मुमालिक के साथ समंदरी रवाबत में अहम किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत अहम मनाजिल तय की हैं। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर कदीर को पाकिस्तान में यूरेनियम अफसोदगी का बानी समझा जाता है, जबकि सलीम सदीकी पहला पाकिस्तानी साइंसदान है
जिस ने नीम के दरख्त के अज्जा से इलाज को दरियाफ्त किया। इसके अलावा न्यूरो सर्जन डॉक्टर उमिया अयूब ने दिमाग के ट्यूमर और दीगर दिमागी अमराज के इलाज को मुतारफ करवाया। 1990 में पहला खलाई सैटेलाइट छोड़ने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में पहले और जनूबी एशिया में दूसरे नंबर पर शुमार होने लगा। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जो अंटार्कटिका में मुस्तकिल रिसर्च करने वाला मुल्क समझा जाता है। पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियों में पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी शुमार होती हैं। इसके अलावा मुल्क में बहुत सी निजी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज और स्कूल भी मौजूद हैं जो तालीम के मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में तालीम की शरह 58% है, जिनमें 70% मर्द और 48% खवातीन शामिल हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 60 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, जबकि सरकारी सतह पर अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल भी किया जाता है। पाकिस्तान की 4 बड़ी सूबाई ज़ुबानें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तो हैं। इनके अलावा मुल्क में बदेशी, बागरी, बटेरी, बरोशकी, दामेड़ी, धातकी, डोमाकी, फारसी, गुजराती, गोजरी, कलामी, कलाशा, कश्मीरी, खेतरानी, मेमनी, ओड, पठवारी और कोहिस्तानी ज़ुबान के अलावा भी बहुत सी इलाकाई ज़ुबानों का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में ज़राए अबलाग के शोबे में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है। 2002 तक मुल्क का वाहिद चैनल PTV हुआ करता था, लेकिन इस वक्त मुल्क में तकरीबन 50 निजी TV चैनल हैं जो 24 घंटे मुल्क में इंटरटेनमेंट फराहम करते हैं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है। फिल्म इंडस्ट्री के सेंटर्स लाहौर, पेशावर और कराची में कायम हैं। पाकिस्तान में 6 ऐसी जगह हैं जिन्हें आलमी विरसा होने का एजाज हासिल है। इनमें मोहनजोदाड़ो के खंडरात, बहलोल शहर में बुद्ध मत के खंडरात, शाही किला लाहौर, शालीमार बाग लाहौर, ठट्ठा की तारीखी यादगारें और किला रोहतास शामिल हैं। पाकिस्तान का रियासती मजहब इस्लाम है। पाकिस्तान में 96.4% लोग मुसलमान हैं, हिंदू 1.5% और ईसाई 1.5% हैं। इसके अलावा बुद्ध, सिख, पारसी और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। पाकिस्तान में 75% तक सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि दीगर फ़िरक़ों में अहले तशी, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी और दूसरे छोटे छोटे फ़िरके शामिल हैं। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा इलाकाई और आला सतह पर छुट्टियां करने वाले ममालिक में शुमार होता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रकम सऊदी अरब से बरामद होती है, जो तकरीबन 5.9 बिलियन रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। पाकिस्तान ने 1960, 1968 और 1984 में ओलंपिक खेलों में 3 सोने के तमगे हासिल करके एक मुनफरिद मिसाल कायम की। क्रिकेट भी पाकिस्तान के मकबूल खेलों में शामिल होता है। पाकिस्तान ने 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी अपने नाम से मंसूब किया। 2009 में श्रीलंका क्रिकेट टीम पर हमले की वजह से 2015 तक पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच मुनक़िद ना हो सका। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के बेहतरीन खिलाड़ियों में जाशिर रहमान, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद आदिल और हारून यूसुफ जैसे नाम शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी खानों में दीगर एशियाई ममालिक के खानों का अंसर वाज़े तौर पर शामिल है। पाकिस्तानी खानों में मौसमी सब्जियां, लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च, दाल, चावल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, लस्सी सूबा पंजाब का एक रिवायती मशरूब है। जनूबी पंजाब में बनने वाली मीठी डिश सोन हलवा पूरे मुल्क में अपने ज़ायके के एतबार से एक अलग मकाम रखता है। पाकिस्तान का कौमी नारा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान के कौमी शायर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल हैं। पाकिस्तान की तारीखी यादगार मीनार पाकिस्तान है। पाकिस्तान का कौमी फूल यास्मीन और कौमी फल आम है। पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज और मुल्क का कौमी जानवर मारखोर है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर और कौमी मशरूब गन्ने का रस है। और पाकिस्तान का कौमी खाना निहारी है। दोस्तों, पाकिस्तान की फौज बेहतरीन कारकर्दगी के लिहाज से दुनिया में 8वें नंबर पर शुमार होती है। पाकिस्तानी फौज में 6,17,000 एहलकार शामिल हैं। पाकिस्तानी फौज बर्री, बहरी और एयरफोर्स पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी फौज अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में भी हिस्सादार रही है। ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक
2012 से 2016 तक पाकिस्तान दुनिया में 9वां सबसे बड़ा असला बरामद करने वाला मुल्क शुमार किया गया। पाकिस्तान का डोमेन नेम .pk और कॉलिंग कोड +92 है। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात जो आपको यकीनन पसंद आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए फारूक अदील को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।